Dear friends, good morning, namaskar, adab, sat sri akal. You are welcome in part 22 of series. Before we start, let us see what we have covered in part 21, where we have discussed about the interest subvention granted to dairy industry and providing grant to procure some quantity of the milk even after the demand was declined from 20 to 25%. On the request of our viewers, today we will talk about the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, which came into force from June 5, 2020. I will try my level best to make it bilingual in the interest of our farmers in general. We will critically examine this act. The opposition of the act is done on these counts. Number 1, applicability of APMC Act. Number 2, state subject. Number 3, continuation of MSP. First, we will talk about applicability of APMC. The farm produce can be sold anywhere from his farm to any place in the country, including the market formed under APMC Act, Section 2M, subsection I. So it is very clear कि APMC Act वैसे ही काम करता रहेगा जैसे पहले काम करता रहा है, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जाएगा। उसके अलावा जो एक फैसिलिटी किसानों को दी गई है वो ये दी गई है कि वो अपनी प्रोड्यूस को अपने फार्म पर, नियरेस्ट मार्केट पर, अपनी स्टेट में, दूसरी स्टेट में जाकर भी बेच सकता है। अर्थात उसको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ वो अपनी प्रोड्यूस को बेच सकता है। दूसरी बात कही गई कि ये स्टेट सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर ने एक्ट बनाया है। यहाँ तक कहा कि अंडर आर्टिकल 254 सब आर्टिकल 2 में हमें केस फाइल कर देना चाहिए। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इल एडवाइस, क्योंकि ये अक्सर तब होता है जब कोई स्टेट कोई ऐसा एक्ट पास करती है जो उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है, तब ये एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ सरकार ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। नाउ वी विल कम ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ MSP. The central government may, by central government organization, develop a price mechanism and market intelligence system for farmers' produce and a framework to dissemination of information under section 7 subsection 1. Hence, MSP is protected. अभी जो MSP की स्थिति है वो ये है, किंतु सरकार एक ऐसा मैकेनिज्म भी बनाने जा रही है जिसमें मार्केट इंफॉर्मेशन के बेस पर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जो किसानों को मार्केट प्राइस रोजमर्रा के बेसिस पर बताता रहे, ताकि वो उसके हिसाब से अपनी प्रोड्यूस को बेच पाए। अभी रिसेंटली रिलीज ऑफ ₹19,444 करोड़ to NCDC, that is National Cooperative Development Corporation, to procure Kharif paddy in the state of Chhattisgarh 9,000 crore, Telangana 5,500 crore and Haryana 5,444 crore. It shows the intention of the government to continue with the MSP regime. Every trader who transact with the farmers shall make the payment for traded scheduled farmer produce on the same day or within maximum of 3 working hours. इसका मतलब साफ है कि अगर वो 3 घंटे पूरे होते होते दिन चेंज होता है तो दिन दूसरा नहीं हो सकता, अर्थात उसको पेमेंट उसी दिन में दी जाएगी। तो 3 घंटे की मैक्सिमम लिमिट इसलिए रखी है कि अगर सुबह कोई प्रोड्यूस बेची गई है तो उसके 3 घंटे में मिल जाए, लेकिन अगर वर्किंग आवर्स का एंड आ रहा है और वो 3 घंटे से कम बचे हैं तो उस कम समय में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर दिन चेंज होने वाला है और पेमेंट की शर्त के अनुसार दिन चेंज नहीं हो सकता। अब हम ये ढूंढते हैं कि इस अपोजिशन का वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ है।
No trader except the farmer producer organization, a group of farmers registered under any law, section 2 subsection D, or agriculture cooperative society shall trade in any schedule the farmers produce unless such a trader has a permanent account number allotted under the Income Tax Act 1961 or such other document notified by the central government under section 4 subsection 1 and also permitted for electronic trading under section 5 subsection 1। यहाँ भी ये बात क्लियर हो गई कि फार्मर जिसको भी सामान बेचेगा उस आदमी के पास पैन नंबर होना चाहिए। अर्थात अभी तक तो ये चल रहा था कि अगर मेरी इनकम फार्मिंग से 1 करोड़ शो की है मैंने और नॉन फार्मिंग से 10 लाख शो की है तो वो 1 करोड़ पे तो कोई टैक्स नहीं है, टैक्स सिर्फ 10 लाख पे लगेगा, हायर स्लैब से लगेगा। और इसका कोई वेरीफाई करने का तरीका नहीं था, मगर अब वेरीफाई करने का तरीका है, क्योंकि जिसको आपने प्रोड्यूस बेची है वो अपने रिटर्न में दिखाएगा कि मैंने इस आदमी से इतने की फार्म प्रोड्यूस खरीदी और उसके 50% से ज़्यादा वो इनकम नहीं दिखा सकता। अर्थात वो 1 करोड़ की अगर उसने खेती की फसल बेची है तो फसल का जो खर्चा है उगाने में, मैनेज करने में, वो 50 लाख होगा और 50 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम रहेगी। अर्थात अब जो फाइल होगी 10 लाख नॉन एग्रीकल्चर इनकम, 50 लाख रुपए फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, तो 10 लाख पर हायर स्लैब से जो भी बनेगा वो लगेगा। अर्थात जो पहले नॉन वेरीफाइबल इनकम थी एग्रीकल्चर सोर्स से वो अब वेरीफाइबल बन गई है। अर्थात इससे टैक्स चोरी रुकेगी और नंबर 2 का पैसा जो बनता था वो भी रुक जाएगा। नो मार्केट फी और सेस और लेवी by whatever name called under any state APMC Act or any other state law on farmer or trader under section 6, it will not contravene APMC Act under section 14। तो it is very clear जो APMC Act है वो न केवल कंटिन्यू रहेगा बल्कि वो किसी प्रकार की फीस नहीं ले पाएगा, कोई सेस नहीं लगा पाएगा, कोई लेवी नहीं लेगा, खाली फार्मर से नहीं ट्रेडर से भी नहीं ले पाएगा। इसका मतलब कि जो एक शॉर्टकट था कि ट्रेडर से ले लिया, वो ट्रेडर फार्मर से काटता था, तो वो स्थिति भी खत्म कर दी है। अब ये राज्य सरकारों को एपीएमसी को खुद मैनेज करना पड़ेगा कि उसके अलावा ये एक्ट कहीं भी एपीएमसी एक्ट को कंट्रावीन नहीं करेगा एज पर सेक्शन 14। इसका मतलब एपीएमसी विल कंटिन्यू। हमने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए, अब ये आपको तय करना है, आपको अपनी ओपिनियन बनानी है कि ये एक्ट किसके हक में है, अर्थात किसके फेवर में है। In part 23, we will appear with the discussion on dispute resolution process and penalties under this act to find out up to what level it is justified to keep dispute between farmer and trader related to purchase of farm produce out of judicial process. I am also eagerly waiting for your comments, suggestions, questions to be taken up in the next part if given on Yudhishthir's Gyan Ganga. Thank you for watching. Please subscribe it free by using your email ID and push bell icon to get notifications immediately after release of next video that will come by next Friday अर्थात शुक्रवार। Stay home, stay safe. Thank you. Shukriya. Bye.